So we'll just start. No. Ajay sir? Can Please, please. Yeah. Should just wait. So I'll just like to. Yeah. We are planning for full DBT also. Now currently our activity is going on. From next year, 1st April, there will be full DBT. Till that time, this DBT online module can be used. When DBT comes, then it will be DBT model. So this is the background. We're ready for this particular module. Any questions? Then taking up the session. Yeah. Now please go ahead. So this is the home page of apprenticeship portal. So this is get started, and it is inside it. It's the payment and establishment reimbursement user manual, right? One more point I would like to just add. Now this year from 1st April 22, the fund flow mechanism has been changed. Establishments will be getting the claims that will be submitted to concerned AAA or RDSD based on the jurisdiction, and then finally claims will be settled by the NSTC. That is the new fund flow, and this whole discussion is based on that flow only. Yeah, please go ahead. Okay. So so first of all, this is the home page, and I've already logged into that. So this is the tab stipend, and under this it is one is attendance and stipend, and another is claim and reimbursement. So both are the separate tabs. So first of all, the establishment will fill the attendance and stipend. They will go inside this tab, and this is how the page will look like. Yeah. So this is how the page will look like. So this three dots, this is view payroll details. This needs to be clicked. After this, there are two things that need to be filled in this page. Every other details like candidate code, candidate name, candidate bank account, contract stipend, prescribed stipend, eligible number of days, everything is auto-populated from the contract. Just the two things that needs to be filled here is the unauthorized leaves and the total amount payable. So unauthorized leaves basically are the leaves for which the establishment don't want to give the payment to the, give the payment to the apprentice. So for example, they want to deduct the money out of that stipend, so they can put here the unauthorized leaves. So stipend payable is auto-calculated by the portal. Once the establishment input the unauthorized leave here, and the stipend payable will auto-calculated. Then coming to total amount payable. So basically total amount payable column is editable, because if any establishment wants to pay some extra amount like any kind of incentive, bonus, or any other thing they want to pay, they can mention here the total amount payable here. So this column is editable. There are 2-3 tabs here. So I'll just explain one by one. One is download payroll template, and another is payroll bulk update. So download payroll template is basically we have given the bulk upload option, that instead of inputting into the portal one by one, establishment can download from here and can input in their Excel, and then they can do a bulk payroll update. After that, there are one thing that it is not allowed. The deduction part is not allowed from the stipend. Only the extra amount can be paid, but deduction is not allowed. After filling this information, the establishment needs to save as draft, so that the information that they are inputting is not basically it's not erased. So it should be saved first of all, and after the establishment can check that the information inputted by them is correct, and then they can freeze the payroll. Freezing the payroll means that once they enter the data, now they are giving confirmation that yes, the data is perfectly fine, and now we want to freeze it. So after this, there is a page that will appear is called choose payment mode. So it means that once the establishment has filled the payroll details, now they need to choose a payment mode. So there are two payment modes. One is the payment through apprenticeship gateway, and another is payment through own gateway. So payment through apprenticeship gateway means that establishment is making payment to apprentices through NAPS portal, through this apprenticeship portal. So first of all, I'll just explain about the payment through apprenticeship gateway.
So once the apprenticeship gateway is selected, there is one tab called that will be appearing in that payroll page, that is view bank details. So view bank details means that the establishment account number is created. So this is how the screen will look like. This is the VAN number, account number. This is the unique establishment number which is being allocated to each and every establishment. And this is the bank name and IFSC code. The total stipend payable for this month will be auto-calculated by the portal. And this is the amount that needs to be transferred to the VAN account. So VAN account is basically the virtual account number. I am again repeating it. So this is the establishment account. They can just transfer the amount to this account, and from this account within 24 hours the stipend will reach to the apprentices. After this, so this is how once they will transfer the amount within 24 hours, within few hours the VAN balance will be reflected here, and then after this within 24 hours the payment will reach to the apprentices. After this, there is a process how to proceed further while using the apprenticeship gateway. So there is a tab called process payment. Process payment means that you have to we have also given the option of selecting the candidates and making the payment batch wise. So here the establishment can also make the payment to apprentice on date wise. So for example, if 10th of the following month is the due date, the establishment can make payment on 5th or 7th or 9th, but the maximum that is allowed is 3 times. So here the candidates will be selected and then process payment needs to be selected. After this the batch will get created. So this is how the screen will look like. So here we have given few pointers that I'll just go through it one by one. The process payment section allows the establishment to do the payment in multiple batches, as I mentioned. The establishment can do maximum payment in 3 batches, maximum of 3 batches. For the first and second batch, the establishment can choose the number of candidates, but for the third batch, by default, all candidates who are available are automatically added to the batch. So for example, if 2 candidates are already being paid off, they will be grayed out. And again another batch, another candidate is being selected and they are being paid out, then those candidates will also be grayed out. And then in third batch, the remaining candidates will get automatically selected and then the payment will be processed. Few pointers regarding the apprenticeship gateway. So bank account number to be updated in candidates login. Please ensure that the account number of apprentices should be correct. Bank or NSDC will not be responsible for any kind of financial loss, and basically this is the VAN number that I mentioned earlier. VAN number will be generated by the portals once the apprenticeship gateway is selected. So VAN number is a unique number which is allocated to every establishment, and the name of beneficiary will be the establishment name only. Amount can be transferred to this VAN account through NEFT or RTGS. No IMPS is allowed. Batch wise and date wise payment can be done, as I mentioned, and UTR number will be auto generated from the portal. Establishment can also retry the payment to the apprentices if any transaction is failed, and retry option is available n number of times. I'll just go through the further process. So first of all, for example, if the establishment has chosen apprenticeship gateway, they can select view payroll details. They can check how many apprentices have been paid and how many are been pending and how many has been failed. So this is how the screenshot will appear, pending. And if it is failed, then it will again reflect as failed, and retry payment option will also be given to the establishment, so they can again retry it. And if it is paid, the status will be written as paid, and here the UTR will be reflected. And if it is failed, then the remarks will also be given, like account number does not exist or IFSC code is incorrect. So whatever is the reason of the payment failure, the remarks will be mentioned here. Payment generated successfully message will appear. Navigate to all the payment screen. So this is how the page will look like. So this is the process for while the establishment is choosing the apprenticeship gateway. So this was the complete process when the establishment is using the apprenticeship gateway. If establishment is using their own gateway, let's say the establishment is using their
Own gateway means that they are making the payment through their own bank accounts. So there the process will here stop. Like once they will just select here the method payment through own gateway, and the process of stipend and payment stops here only. So there are two process in this. First of all is stipend needs to be paid to the apprentices, that is through the that page is attendance and stipend. After that the establishment will take claim from us. So that is the tab. Another tab is claims and reimbursement that I showed in the first page. So let's go to claims and reimbursement section now. Yeah. So claims and reimbursement section is here. The establishment view the quarterly apprenticeship claims and reimbursement details here. So this is how the page will look like. So it is very important that establishment can initiate the claims only if the payment for all 3 months of the quarter is freezed and payment mode is selected. So it is very important that all the establishment, every establishment needs to freeze the payroll and choose the payment mode. Whatever they are opting, they have to choose that. And once they have completed for all the 3 months, so for example, if the financial year, like first quarter starts from April, May, June. So April, May, June is the first quarter, July to September is the second quarter, and October to December is the third quarter, and so on. So this is how the first quarter will appear: year, quarter, establishment, total number of apprentices, and total amount of stipend paid as per the norms, and total actual amount of stipend paid. And this is how the claim will get calculated on total actual stipend amount paid. So first of all, I will just explain the process when the establishment is opting for payment through their own gateway. Okay. So when they are selecting payment through their own gateway, then so they have to submit 2 documents. I'll just show one by one. So once they will go inside this claim page, so there are few tabs here: download template, claims bulk upload documents, submit claim, save as draft, and download. So download here, it means that if the establishment wants to see the detail how the claim is being calculated, they can download this Excel and they can just check from here. And if they want to do the bulk upload option of did the apprentice drop out during the training quota, if they want to do this option, they can select this download template again and do a claims bulk upload here. So this is the this basically these tabs means this. And upload documents means that 2 documents that needs to be uploaded. I'll just show it in the later page. So here the document needs to be uploaded, and then submit claim needs to be submitted. Only then it will further be ready for processing. So here this column, did the apprentice drop out during the training quarter? It means that if the apprentice has left the organization, or he got some job employment somewhere else, and he wants to drop out, he wants to leave that company. In that case, only the establishment should mark him as dropout as yes. Otherwise, for example, if the apprentice is on leave or some medical leave or some other leave, then they should mention here as no. Because once it is mentioned as yes, the apprentice will disappear from the payroll from next payroll. So it will not be visible here, because this type of complaints, this type of errors we get from the other establishment. So I am just sharing the feedback that this column needs to be filled very wisely. So here I've mentioned also, if establishment select the option as yes, then the apprentice left dropout without completing the eligible amount claim amount will be 0 for the selection of yes. If the establishment select the option as no, if the apprentice has completed training in the middle of quarter or available for the entire quarter. After this, I'll just go to the document part. Yeah. So the 2 documents that needs to be uploaded here is, one is the stipend claim declaration and another is the Excel annexure. So here is a stipend declaration format. So it is a fixed format that we request from the establishment, and establishment needs to upload everything online on the portal only. And this is Excel annexure is basically the details of apprentices, their attendance, their account number, the amount of stipend paid.
So this is just the annexure. Okay. Yeah. So after this, they have to submit the claim. So like I mentioned. Yeah. So they need to submit the claim. Yeah. So one more thing that another process was regarding the apprenticeship. Mute. तो डेटा बद्दल फॉर्मॅट मध्ये ना ते सगळे रिझ्यूम डाउनलोड करून Yeah. So in case of apprenticeship gateway, like if the establishment is using the method of apprenticeship gateway, they need to upload no documents. There is no document concept there. They just need to submit the claim, fill this information of did the apprentice drop out in the training quarter. So we have clearly mentioned here, no document in case of usage of apprenticeship gateway. They just need to submit the claim after filling the information, did the apprentice drop out in the training quarter. So coming to next part. So here the contract will go to the respective authority based on the jurisdiction. So the respective authority will verify the claim, and this is this I'm showing in respect. I mean this page basically is in respect of the authority who will be verifying the claim. So this is how the page, their screen will appear. They will go inside the stipend, claim and reimbursement. They will click on view claim details and send for verification means now they have sent to the respective authority for the purpose of verification. So claims is being submitted now, and the next step in case of establishment will see this send for verification, and the respective authority whosoever they are, they will here verify the claim or send back whatever they think is okay. I mean if they are comfortable with the documents and training and all, then they can verify it, and if they are not like convinced with the document or they have some their concern, they can send back for correction. There will be some remark column also. Once they will verify or once they will send back for correction, there will be one remark column. The respective authority needs to mention the reason that why they are sending it back, so that the establishment can read it again and they can resubmit it again. So they can verify that, like I mentioned, they can verify it here. So this is how it's verified. The claim verified successfully message will appear. Yeah, so in case of apprenticeship gateway, as I mentioned, no document is required, but in case of own gateway, there are 3 documents which are required. One was Excel lecture, another was declaration, and the third is the bank certificate or basically the proof of payment. So proof of payment means that since you have used your own gateway, so the authorities are not aware that which gateway you have been using, I mean from which bank you have made the payment. So the authorities the system will basically initiate the sampling, and the proof of payment needs to be uploaded here. So this is how the screen will appear. So once it is verified by the authority, then the initiated will be there. Initiated means that a sampling is being generated by the portal, and now the establishment needs to upload the proof of payment. So initiate sampling, this is how the screen will show, and after this step, this is how the screen will appear. Like the portal will select automatically the candidate highlighted in the green, and the establishment needs to upload the document here. The document are basically 2 things that we ask the establishment to upload. One is the bank certificate. I'll just show the format of this, and another is the apprentice bank statement. Whichever they are comfortable with, they can upload it here. So they need to click here submit, and then submit bank certificates. After this, so submit bank certificate this is the format. We have just created one format for bank certificate also. It can be on the letterhead of the establishment or letterhead of the bank. Basically, bank needs to certify it. Bank will certify it. Yes, this payment has been, this particular apprentice has been paid from us, from our bank, and they will certify it here. And then the establishment can upload the document here that I mentioned. After this, the respective RDSDs, or I mean the respective authority, will again verify this sampling document.
sampling document, they will click on this, they will click on actions. I'm talking in respect of now the respective authority who will verify it again. Again, they can select on actions, click on that sampled item, and then they can verify it. If they are okay with it, they can verify it. If they are not okay with the document, they can send back for correction, like I mentioned previously also. With the remarks column is also there. Remarks can be there. So once it is approved, so now it comes to NSDC. So NSDC, the screen will appear like this, approved at level 1, and now the NSDC will make the payment through PFMS to the respective establishment. So basically this is the process, this is the entire process for while using the own gateway. And in case of apprenticeship gateway, it is very simple since there is no documentation part. So just the respective authority will verify the claim and it will come to NSDC, and NSDC will make payment through the PFMS. So basically we have given the detailed flow of this. Like for example, in case of optional trade, it goes to sector skill council. In case of designated trade, it will go to AAA or RDSDs. Okay, so we have given this detailed information here, and this is the entire process of DT claims to be for submission of DT claims online. So now we can take questions. So this is we can. As we have completed the process, now we can take the questions one by one. Something about that sampling once again to everybody. Okay. The sampling happens only gateway we select is a establishment gateway, their own gateway. Okay. Yes, so yes, that's right. System does the sampling, which is 5% currently. It will select 5% of the total claim records, out of claim records, and then it will appear to the corresponding authorities, and authorities can check the documents and then verify. Isn't it? That is the only difference as far as processing concerned. Yes, correct. Since in case of apprenticeship gateway, we are not taking any kind of document, so obviously sampling will not happen because the payment is being made from our gateway, from apprenticeship only. So we can track from there only that payment has been made because we get the reverse MIS file on daily basis. So we know that the payment is being made to the apprentices. But in case of own gateway, we don't know. So that is the reason the portal will initiate sampling, and portal is aware that the own gateway is selected or apprenticeship gateway is selected. In case of own gateway, the portal will automatically select the candidate for sampling. Excuse me, madam, I want to know one thing. Myself, P. K. Roy, Deputy Director, DG Rajasthan, Jodhpur. Yes, sir. Madam, in our state there are 33 districts. They are called the triple T. And the Joint Director, the apprentice at Jaipur, dealing with the next scheme. So, in this process, when establishment will make the bill, then they will forward the bill to AAA or RDSD. So it depends. Ajay sir, would you like to answer this question? The redirect claim for verification is based on the jurisdiction. If the establishment is the state entity, it will go to the AAA. If it is a central entity, PSU, central PSU, it will go to the RDSD. It is based on the jurisdiction. So current configuration is AAA and RDSD. Sir, AAA means district headquarters ITI, which is a nodal ITI of the... Yes. District authorities, AAA, Assistant Apprentice Advisor. Yeah. Okay. So, only difference in case of DBT will be the offline DBT who have participated, those set of candidates will not be eligible in this online claim. They will be grayed out and they will not be considered. That will be done by the system automatically. Yes. Yes. Ma'am, your claims are that this online reimbursement will be from 1st April 2022, right? Yes, sir. So what about the old claims received on portal? Should we reject them?
That I think Ajay sir, would you like to answer? No, there cannot be DT claims online because the DT claim module is still not deployed. Okay, it was only for the OT claims. Until and unless you prepare month-wise payroll, at least it should start from the 1st April, so that in the next quarter only you will be able to process the April, May, June. सर ISB एडमिन लॉगिन में 2019 से लेके ऑनलाइन क्लेम्स है सर वेरिफिकेशन के लिए. OT का होगा वो, DT का नहीं होगा. DT का प्रोसेस नहीं था अब तक. You check it. It may be OT claims. Sir, how we can verify it then? Yeah, we are adding one column. If you are talking about the distinguishing between which type of claim, which type of trade it is, one column will be added which will be showing designated or optional trade, so that batching and other things can be done accordingly. ठीक है सर. और सर जो फिल्टर है वहाँ पे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे नाम से भी नहीं हो रहा है और ई नंबर से डालने पर so that filter is not working. तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हम लोग क्लेम्स को मैन्युअली. वन पेज आगे जाके आई हैव टू फाइंड द क्लेम ऑफ जूलियट टू सब्सिक्वेंट फॉर बलमल. Yeah, any user related enhancement you want it, maybe you can write it separately. That will be taken as an enhancement from our side. Yeah, we can take that. We can take that. Yeah, we are compiling whatever suggestions are coming from the field, or actually when you start working, then you may Right. feel user experience should be like that. You can write to us and we can just take into consideration. Okay, sir. And sir, वो भी suggestion था that when establishment is selecting whether the apprentice is dropped out or not, that Excel sheet is not properly downloaded. That all the columns are not there. So they have to Just look into that. Sorry, sir. What about that template? Sorry, I didn't understood. while establishment is selecting that whether the candidate is dropped out or not. And then they have to, there are two options. They can manually change it or they can download the Excel sheet, and again after doing the changes they can upload it. But while downloading, all the required fields are not downloaded there. Sir, actually, to be honest, I have not seen such type of error because we work on this on daily basis. But still, if you think that establishment is facing such type of error, then they can definitely raise ticket over technical support, and they can mail us the ticket, and we will just definitely check that, because I have not seen such type of issue. But if you have, then no problem. We can get it resolved through a It team. will be given to the establishment, and then establishment need to update their account details in the portal. Yes. That account only you will do the payment. Yes, sir. So through PFMS, NSDC will make the payment, and establishment will fill the UTR details and the sampling document in the portal only. Everything on the portal, no hard copy. Okay, but the part the NSDC will be paying again back to the establishment. Yes. So establishment need to update the account number, IFSC code, Okay. Sir, for this requirement, the establishment at the time of registration, they need to update their account details. So the claim report will be scheduled every day, or I think every week we will decide with Ajay sir. So to all the respective RDSDs, the report will go to them. Okay, it will have account number, establishment details, everything in that. So we can automatically take from the establishment profile, but the establishment need to ensure that they should enter their correct account details on the establishment profile section. So we'll take that from we'll take the account details from that page only. On trial basis, ma'am, I have approved one claim of central government CS. So till how much time it will require to process the payment from NSDC? Okay. Sir, so basically let this the claim module let go live. So once we'll get a go ahead, yes, then we can process the claims online. So we will start within, we'll try to disburse within 15 days or 20 days. Hello. Am I audible? Yeah, please tell me. Hello.
Raman Patil, Revenue Director from DVT Maharashtra. Is there any time limit for claim submission? That means we are in third quarter now in December. Shall we submit the claim of first quarter or second quarter like that in third quarter? Is there any limit for establishment? So that basically we will be circulating the date for blocking the submission. As of now, for FY 2021 and 21-22, 30th November was the last date in case of optional trade. But rest Ajay sir can tell in case of designated trade what is the deadline. But yes, for FY 22-23 right now we are accepting claims for all these quarters. So obviously the deadlines for this year is not yet decided. So might be till December or by next year we'll be closing this year claims. But right now you have enough of time to submit the claims from April to June and from July to September. These two claims can be submitted. Thank you, ma'am. One more question. Yes. As per my understanding, there are 4 stages. First stage is establishment, second stage is AQ, third stage is RDSDA, fourth stage is NSDC. Yes, sir. Correct. Sampling is done at NSDC level only. So, as per No, my sir. understanding, No. So sampling will be done by the portal once the respective authority will verify the claim. okay. Yeah. Automatic. Yeah. It will be automatic. Yes, it is not NSDC. There is no person who will be doing it. It's just automatically. Once you will verify the claim, once you will select on that checkbox and click on that verify button, automatically within 24 hours, next day sampling will get generated and the column will be highlighted in the green that I showed in that user manual. So, ma'am, as per my understanding, 100% verification will be done at AQ level and at RDSD level. Yes, sir. Correct, sir. Okay. Thank you, ma'am. NSDC will just make the payment, sir. Okay. Thank you. It's 11:45. Yes, sir. Hello. Ma'am, I'm from Riga, Madhya Pradesh. Yes, sir. Ma'am, payment which had made by establishment for April 22 to November 22 by check. Yes. How would they claim on the portal? Okay. Sir, for this purpose, like like I mentioned, the process, they need to fill the attendance and everything. Okay. Then coming to the claim page, they have to fill the check details. They can be filled in the UTR number column. Okay. And in the annexure also they can mention the check. The portal will automatically generate sampling of 5%. So, for example, if there are 100 candidates, so 5% of that will be selected for the sampling purpose. And the respective authority, again the RDSDs or whosoever it is, they will check this 5% sampling document that if they are convinced with the document, they can definitely approve it on the portal and then NSDC will make the payment. Okay. Check, basically sir, check payment is allowed as per case of own gateway. Check and basically the online payment. But no cash payments are allowed. एक्चुअली पता नहीं है ना, बिकॉज क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ एक चीज, टिकट का जो काउंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि टिकट बहुत ज्यादा, जब से हमने ऑनलाइन पे स्टार्ट किया है टेक्निकल सपोर्ट, तो टिकटिंग सिस्टम में टिकट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो हो सकता है कि जो टीम है उससे मिस हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप ना मेल कर दीजिए, लाइक अजय सर को मेल कर सकते हैं या फिर हमें एनएसडीसी को मेल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन फॉलो विद देम। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो टेक्निकल टीम है वो उनसे हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो जो टिकट है ना, एक बार टिकट का भी मैं बता देती हूँ कि टिकट पे ना वो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल टीम ना कुछ कमेंट्स मेंशन करते हैं, तो हमने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि वो उस पर जवाब नहीं देती। जो भी टिकट रेज कर रहा होता है ना, वो उनको हमेशा टिकट पे वो वापस लिखते हैं कि आप ये सबमिट करो या ये डिटेल्स दो। तो अगर आप जब तक आप डिटेल सबमिट नहीं करोगे ना, वो टेक्निकल टीम उसको क्लोज कर देगी। तो प्लीज इंश्योर कि अगर टिकट आपने रेज करी है तो उस पर वापस जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको जरूर मेंशन कर दीजिए प्लीज। ये आप करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो क्लोज नहीं करेंगे टिकट को और उसका रिजर्वेशन जरूर आएगा। ठीक है सर। मध्य प्रदेश स्टेट अपडेट ऑफिस सर, प्लीज ये बताइए कि इसमें अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है या फिर स्टेट अपडेट एडवाइजर है? सर वही मैं बोल रही हूँ, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के जुरिडिक्शन पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके जुरिडिक्शन में आता है। तो बाकी आई थिंक अजय सर विल बेटर आंसर दिस क्वेश्चन कि अजय सर ये कहाँ जाएगा। ट्रिपल ए, फिलहाल जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज ट्रिपल ए का है, ठीक है। ट्रिपल ए के पास में जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर? नहीं, या तो स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर रहेगा या तो ट्रिपल ए रहेगा।
हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रिपल ए को डेलीगेट किया है पावर्स, ट्रिपल ए कैन टेक द डिसीजन ऑन द क्लेम. So authority here, approving authority will be triple A, verifying authority will be triple A. Okay. And then directly to NSDC. One thing, sir. Establishment can claim from April 2022. Yes, sir. हाँ, जब भी डिप्लॉय हो जाएगा मॉडल, फर्स्ट इक्विपमेंट will be उससे साइड. If they not मतलब update the attendance of the trainee, then अटेंडेंस और स्टाइपेंड अपडेट करना जरूरी है. Yes, sir. अगर ऑनलाइन यदि उसने नहीं किया था, कुछ बच्चों का छूट गया, कुछ का उसने नहीं किया, फिर अभी क्या उसको ऑप्शन रहेगा अपडेट करने का अटेंडेंस? यस सर, अगर उसने फ्रीज नहीं किया तो रहेगा. ओके. From Nagpur. यस सर. Ma'am, I have joined late today. Will you repeat please in short how to approve the claim on portal? Okay. Sir, you can go through the payment and reimbursement user manual, which is on the home page, but still I'll just brief you. When you will log in into the portal, there will be a tab called claims and reimbursement. Okay. You have to go inside this tab and you have to select the establishment who has submitted the claim. So for example, it will be shown as sent for verification. It means that it is coming, it is with the authority, with the respective authority, whosoever it is, and then they can go inside the claim. Okay. They can I'll just show you here. Yeah, so here, for example, yeah. So this is for sector scale councils. The same screen appear in case of your also, like respective AAA or RDSGs. So it will be claim and reimbursement part. Then you claim details. You need to go inside it. Okay. After this, you have to select the candidates whom you want to approve. If there is a bulk option, bulk approve option is also available. So sir, you can do it bulk also, and you can verify it here, actions and verify, and then it is sent back for correction. So for example, if you have not convinced with the document or training proofs or whatever, you can send back for correction also, and you can write remarks so that the establishment can read it and can again submit the claim. So they can again submit it n number of times. But Madam, if you want to, what proof they have to add? Attach. So that this establishment. So basically, in case of own gateway, we are asking for two documents: own gateway or apprenticeship stipend declaration and Excel Nexture. These are the two documents that we take for apprenticeship own gateway. Sorry. In case of apprenticeship gateway, we are not asking for any. And like you were doing verification earlier also for designated trade claims, the same thing you need to do for in future also. It's just that everything is online. No hard copies, nothing. The payment by NSDC. That's it. The checking part, the verification part is exactly the same that you were doing earlier. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. That's it. Just one clarification regarding PFMS gateway. The payment NSDC will make will be through PFMS portal, but there is no direct link from the apprentice portal to the PFMS. PFMS, all the establishments based on whatever bank details you have provided as a part of your profile, they will be called as vendors. The vendors will be created, and in the offline mode on the PFMS portal, all the payments will be made. And there is a utility on the PFMS homepage. You can check know your payments, you can enter your details, and you can get the details of the payment made to you. Okay. हाँ. नमस्कार, मैं चक्की सिंह एडवाइजर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर. मैम, इसमें मेरा सजेशन है कि क्योंकि अभी क्लेम्स का मॉड्यूल हमने तैयार किया है, तो इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स का क्लेम दिखना चाहिए रिइंबर्समेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुके हैं. जैसे कि अभी हमारे ट्रिपल ने बताया धार के कि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसने वेरिफिकेशन किया तो वो फेक पाए गए, बट क्योंकि पोर्टल जो पेरोल फ्रीज कर देते हैं तो वो दिक्कत होती है कि वो अप्रूव करने के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है. ठीक है. तो इससे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो वो उन्हीं का निकले जाए. सर सर ये फंक्शनैलिटी वैसे लाइव है जो आप कह रहे हैं. बेसिकली अगर कोई सेंड फॉर करेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका क्लेम नहीं बनेगा. ठीक है, वो फंक्शनैलिटी है.
लेकिन अगर सेंड फॉर करेक्शन का अगर बनता भी है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जब तक क्लेम सबमिट नहीं होता, जब तक वो एस्टैब्लिशमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर देती। हमने वो फंक्शनैलिटी भी लेके आए हैं, वो अभी आपने ऑनलाइन देखा नहीं है मॉड्यूल, तो इसलिए शायद आप नहीं देख पाएंगे उसको। लेकिन ऑप्शनल ट्रेड में अगर सेंड फॉर करेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका क्लेम सबमिट नहीं होता टिल दैट टाइम वो सेंड फॉर करेक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना कर दे। रिस्पेक्टिव अथॉरिटी नीड्स टू टर्मिनेट दैट and then only establishment can submit it. But जो आपका वो concern है, वो I think this is a concern I've heard from other persons also. एक बार आप ये ticket please raise करके मुझे दे दीजिए, so that I can get it checked from our team, our technical support team. जो आपने बोला है कि automatically approve हो रहे हैं, सर वो हम check कर लेंगे। और coming बहुत सारे ऐसे ज्यादा है, जैसा आप पता है कि कुछ भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो 14 डेज आगे तक का हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, 40 डेज प्रीवियस डेज का भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उसके बाद जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कैंडिडेट साइन करता है उसके नेक्स्ट 14 डेज तक अप्रूविंग अथॉरिटी उसे अप्रूव कर सकती है। तो उस विंडो के बीच में एस्टैब्लिशमेंट बहुत सारे या उनके जो भी टीपीएस हैं वो क्या करते हैं, उसको पेरोल फ्रीज कर देते हैं। जब पेरोल फ्रीज हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। सर वो आई डोंट थिंक पेरोल फ्रीज होता है, मेरे को कुछ जो मुझे लग रहा है टेक्निकल इशू है कुछ। वी कैन चेक इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था पिछले बार। ओके सर, एक यूटिलिटी पे हम काम कर रहे हैं अंडर जस्ट डिस्कशन स्टेज कि जब तक अप्रूव नहीं होता उसको फ्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट को ही फ्रीज कर पाएंगे। तो ये सिस्टम वाले हैं कि आज ही कॉन्ट्रैक्ट बना और भेज दिया, फ्रीज कर दिया क्योंकि उसको पेमेंट करना है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे। तो अप्रूवल का हमने एक कंडीशन उसमें लगा दिया है। एक कंसर्न है उसका कि अभी बहुत सारे टिकट हम लोग रेज कर रहे हैं बट उसका पर जो उसका रेजोल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि एक टिकट हम रेज किया, फॉलो कर रहे हैं, उसमें सभी लोग मार्क के सर आपको भी किया हुआ है एक कैंडिडेट का। अब उसमें क्या है, एक एस्टैब्लिशमेंट है आंध्र प्रदेश की, उसने हमारे एमपी के कैंडिडेट का एक फेक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है। अब वो जो बच्चा जेन्युइन करने जा रहा है, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, तो उसकी वहां लिंक दिखा रहा है। अब हमने टिकट रेज किया, हमको रेजोल्यूशन ये मिलता है कि आप कैंडिडेट से बोलिए कि उसको करने के लिए, टर्मिनेशन रिक्वेस्ट करने के लिए, उनका ये रेजोल्यूशन आ रहा है कि जब तक 2 बार टर्मिनेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं। इसमें इशू ये है कि जो प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, और उसको जब हम लोग मेल पे ही फॉलो करते हैं, जो भी अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं डीजीटी में या फिर मिनिस्ट्री में, तो उसका ऐसा रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है सर। देखिए ऐसे केसेस में ऐसा है ना, जब तक बच्चे से और इस्टेब्लिशमेंट से हम नहीं लेते इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि ये हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, हमारे पास कोई बेस ही डायरेक्ट टर्मिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए बच्चे को भी हम डायरेक्टली इन्फॉर्म करते हैं कि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट आप दे दो, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में। अगर कंप्लेंट है तो दिया है ऑलरेडी, जो अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो हमारे ऑफिस को संपर्क करते हो, हम लोग उसके बाद विद प्रूफ ही भेजते हैं। जो एक कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में और फिर से मेल कर देता हूँ। उसमें यह है कि कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उसके बाद भी उसको बैकएंड से टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है, तो एक्चुअल जो अप्रेंटिसशिप करना चाह रहा है जहां पे कर नहीं पा रहा है, तो उसका ऑलरेडी लाइव कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है या आधार लिंक दिख रहा है उसका। नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आप किस पे भरोसा करेंगे, बच्चों पे डायरेक्टली कितना भरोसा करेंगे। बच्चे हो सकता है उसको पसंद नहीं है और शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि दूसरी कंपनी में जाए, ये भी किससे हमने देखे हैं। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अप्रूविंग अथॉरिटी की तरफ से भी नहीं आता है, तब तक उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बच्चे के हमारे देश की जो ज़ेनेक्स आईटी सर्विस करके जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसने ऐसे 120-21 फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। एसएससी ने भी बोला है कि उसको टर्मिनेट किया जाए बैकएंड से। आप मेल ट्रेल में देख सकते हैं सर। हेलो, ठीक है। नमस्ते सर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो भी फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था और अभी उसको जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट बनाना था ड्रॉसमैन मैकेनिक में, वो हम लोग नहीं बना पाए। और टिकट रेज करने के बाद में वहां से आंसर यही मिला कि उसका एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है करके, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट कीजिए, कुछ प्रूफ ये हमारे पास में कि ये चीज है, ये फेक कंपनी है, हम गए थे, वेरिफिकेशन किया, नहीं मिला, तो आपके बेसिस पे हम लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए,
ठीक है। डॉक्यूमेंट दिए ना सर, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैंने जो उन्होंने पहले रेज किया हुआ। हाँ, लेकिन कंपनी का कंप्लीट हो चुका है। कंपनी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, आप किसने चेक किया? एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसका मटेरियल हैंडलर करके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, और जो कि उसको अभी चाहिए ट्रांसफॉर्म मैकेनिक का करना है तो वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ 12,500 उसको वहाँ पे स्टाइपेंड है, लेकिन वो नहीं कर पाया वहाँ पे। तो यही चीज है ना, बच्चा चाहता है जंप करे और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, जंप करे नहीं, वो मटेरियल हैंडलर का उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है ना, वो ड्रॉसमैन मैकेनिक अभी हुआ तो उसको अभी का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, तो हम लोगों ने ट्राई किया नॉन एनएपीएस में करने का भी, तो नॉन एनएपीएस में भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो यही आपको लिख के देना है कि उसका ट्रेड ये है, इस करंट ट्रेड में वो कर रहा है, जिसकी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, हमने चेक कर लिया है, और ऐसे अगर आपके पास से कुछ आते हैं सपोर्टिंग चीजें तो हम उसके बेस पे डिसीजन देंगे। ओके, ठीक है। सर ये ऑनलाइन क्लेम मॉड्यूल कब से लाइव है सर? लाइव होगा सर? हाँ, लाइव अभी नहीं हुआ है, हम जस्ट हमारे NAPS 2 का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जैसे कैबिनेट सीट का अप्रूवल होता है इसको हम लाइव कर देंगे। सो आई थिंक some more days we have to wait for and we will be getting that approval. So ये एडवांस में ट्रेनिंग थी ताकि आप रेडी रहे मॉडल के लिए। Okay sir, thank you. Namaste sir, I'm calling from Ahmednagar BTRI Center, Assistant Apprenticeship Advisor. I am Junior Apprenticeship Advisor. Actually हमने हमारे जो लॉगिन में पोर्टल में चेक किया है, तो हम अगर स्टाइपेंड पे क्लिक करते हैं और क्लेम एंड रिइंबर्समेंट में जाते हैं तो 2020 से वहाँ पे क्लेम्स अवेलेबल है, जो कि हमारे यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग दिखा है। जब हम लोग उसमें क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो हमारा पार्ट है, जो उन्होंने कंपनी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो उसमें डिक्लेरेशन में एक कंपनी है जिन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि एस्टेब्लिशमेंट हैड पेड टोटल स्टाइपेंड ऑफ 1,20 लाख समथिंग। तो उन्होंने कौन से महीने का है, कौन सी कंपनी का है, ये दिया नहीं है। इट इज थर्ड पार्टी एजेंसी। तो अगर इसमें से कुछ हमारे ज्यूरिडिक्शन का है तो उनको अलग से करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस आपके पास से जाएंगे या हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ये पूछना था। और दूसरा एक था कि एक कंपनी में थर्ड पार्टी एजेंसी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक कैंसल चेक सबमिट किया है, जो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये कंपनी ने पेमेंट किया है नहीं किया है, बिकॉज वहां पे थर्ड पार्टी एजेंसी है। और अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अप्रैल 2022 से लेके ये हम लोग क्लेम्स का वेरीफाई करेंगे, बट यहाँ पे जो ओल्ड वगैरह दिया है उसका हम लोग कैसे करेंगे? शायद ये ऑप्शनल रेट के हो सकते हैं, ऑप्शनल रेट के हैं या डेजिग्नेटेड? नहीं सर, हमने ये चेक किया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी मैंने डाल के चेक किया है, तो दे आर फ्रॉम डेजिग्नेटेड। इस भेज दीजिए, हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि बीटी का तो ऑनलाइन ही नहीं हुआ है, बीटी को होने नहीं चाहिए वहाँ पे। मैम इसका आंसर बेसिकली ये है कि जो आप पुराने क्लेम्स अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो वो तो आप ऑफलाइन ही प्रोसेस कर रहे हो ना अभी तक, जब तक अभी तो वो हो सकता है कि वो मॉड्यूल बन चुका है तो माइट भी वो आपको पुराने वाले दिख रहे होंगे, लेकिन जो आप तो उनकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग कर चुके हो ना पुराने क्लेम्स के, तो ये जो मॉड्यूल है डीटी क्लेम्स का जो आप ऑनलाइन स्टार्ट करोगे वो तो अप्रैल से जून से ही आप वेरीफाई करोगे, वो तो पुराना पेमेंट तो आप ऑलरेडी कर चुके होगे ना जी। और अगर किसी का ऐसे अभी जो इसमें ब्लैंक चेक डाला हुआ है वो पिछले महीने का है, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल मैम, अगर आप कन्विंस नहीं है किसी भी चीज से तो आपके पास ऑप्शन है, अभी आपके पास सेंड बैक फॉर करेक्शन का ऑप्शन है, आप उसको वापस भेजिए, आप अपनी वेरिफिकेशन करिए, अगर आपको ठीक लगता है तभी आप वेरीफाई करिए, नहीं तो नहीं करिए। और रही बात आपको जो ऑप्शनल और डेजिग्नेटेड रेट का कंबाइन अगर आप जो कह रहे हो मैम, वो उसमें क्या है कि जो आपके पास जो आएगा ना वो सिर्फ डेजिग्नेटेड रेट का ही आएगा, ठीक है। और जो रिस्पेक्टिव, तभी मैं कह रही हूँ, जो ऑप्शनल ट्रेड का है वो सेक्टर स्केल काउंसिल के पास जाएगा, डेजिग्नेटेड ट्रेड का ट्रिपल ए या आरडीएल जो भी है उनके पास जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी पोर्टल में है ऑलरेडी। और उसके लिए कोई टाइम लिमिट है क्या? बिकॉज अगर हम लोग सेंड पर वेरिफिकेशन करते हैं, वहां से रिटर्न आएगा, उसमें भी अगर कुछ गलत है फिर से किया तो कुछ टाइम लिमिट है या नहीं? इसके अंदर ना अभी क्या है कि हमने सेंड फॉर करेक्शन और एक रिजेक्ट बटन का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। वो भी अभी लाइव होगा, जब डीटी क्लेम्स पूरा लाइव हो तो रिजेक्ट बटन भी लाइव हो जाएगा। रिजेक्ट बटन बेसिकली ये है, अगर आप सेंड बैक फॉर करेक्शन का मतलब ये होता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को एक मौका देना चाहते हैं कि वो ठीक काम करे, मतलब एक बार चेक करें, हमारे कमेंट्स पढ़े और उसको दोबारा सबमिट करें, ठीक है।
आप उनको 1 या 2 बार आप उनको चांस देंगे, ठीक है। थर्ड टाइम में भी अगर वो नहीं सॉल्व करते तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट का बटन भी आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। हाँ, तो मतलब 2 टाइम ऑप्शन। पोर्टल गेट पे अभी शुरू हो गया है क्या? हेलो, अप्रैल से अभी पोर्टल गेट में शुरू हो चुका है। अप्रेंटिसशिप गेटवे की बात कर रहे हैं? हाँ यस मैम, ये लाइव है, बट वो अभी क्या है, हाँ एस्टैब्लिशमेंट तो पेमेंट कर सकती है, अप्रेंटिसशिप गेटवे यूज कर सकती है, ऑन गेटवे जो भी उसको करना है वो कर सकती है, सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब सबके लिए अवेलेबल है। अप्रेंटिसशिप गेटवे अभी मतलब वीकली ट्रेड के लिए शुरू हो चुका है क्या? यस मैम, लाइव है। ओके, थैंक यू। आप थोड़ा पास में आके बात कीजिए। While generating the contract, 422 unaccessible error is come. और आपको इसके बारे में सुनील जी वाकड़े ने भी मेल किया है, मैंने भी मेल किया है और गरडा केमिकल ने भी मेल किया है, लेकिन सर 2.5 मंथ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, वो जो एरर है 422 अनप्रोसेसेबल समथिंग आता है ना, हमने भी देखा है, हमने उसको फॉरवर्ड किया है, हम देखेंगे, मैं देखूंगा उससे एक बार उसको। थैंक यू सर। तो बच्चे को वो सर कैंडिडेट है उसको वो ऑनलाइन प्रोग्राम मतलब जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग? हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप कंटिन्यू करें, उसको करना है तो बैकडेटिंग में बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर द सॉल्यूशन सर। अजय सर बताइए। सर एक और सजेशन था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने गेटवे से पेमेंट करता है तो जो 5% सैम्पलिंग का जो वेरिफिकेशन है वो अगर ट्रिपल ए ने वेरीफाई अगर किया है तो सैम्पलिंग का जो डॉक्यूमेंट है, सैम्पलिंग का जो फिगर है कैंडिडेट का, तो ऐसे एक लॉगिन पे आना चाहिए सर, जिससे कि वो रीचेक हो सके, रीवैलिडेट हो सके कि सही क्लेम फील्ड में प्रोसेस किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। समझा नहीं एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट आपका? सैम्पलिंग का सैम्पलिंग जाएगी इंस्टीट्यूशन के पास में, सैम्पलिंग के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, उसके बाद में ट्रिपल ए उसको या आरडीएस की वेरीफाइंग अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगी, ठीक है ना, वो हाईलाइट हो जाएंगे उसके सामने, हाईलाइट वाली उसकी उस सैम्पलिंग जो है, अगर मान लीजिए ट्रिपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है तो ट्रिपल ए ही उस सैम्पलिंग को फाइनलाइज करेगी, मतलब कि उसका वेरिफिकेशन करेगी। इसमें सर सजेशन ये था कि इसमें स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ऑफिस को भी दिया जाए सर, कि वो वेरीफाई मतलब रीवैलिडेट हो पाए कि सही क्लेम को ही प्रोसेस किया जा रहा है फील्ड ऑफिस से। ट्रिपल ए इज अ पार्ट ऑफ एसए, ठीक है ना, इसमें अभी 2 लेवल इन्वॉल्व करना कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा चीज। हमने ट्रिपल ए इसलिए बोला कि ट्रिपल ए डायरेक्ट टच विद द फील्ड, एस्टैब्लिशमेंट को भली बात जानते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है और बाकी सारी जो फैक्ट्स है, तो इसलिए उसको ट्रिपल ए के पास में दिया है। बट सर होना चाहिए फिर स्टेट लेवल पे। हाँ, अभी ये मॉड्यूल को आप यूज करना शुरू करें और रियली रिक्वायरमेंट अगर लोगों से आती है इस तरह से तो उसमें थोड़ा अमेंड किया जाएगा आपके सेशन के बेस पे। लेट अस स्टार्ट यूजिंग इन इट्स ओरिजिनल शेप, पहले जो है जैसे डिजाइन किया है, और उसके बाद में इंप्रूवमेंट के चांसेस तो होते हैं, कुछ सेशन आता है देन उसको ठीक करेंगे थोड़ा। ठीक है सर। अजय सर बोलिए। Sir, while paying stipend through apprenticeship gateway portal, is age limit of stipend transfer for establishment? Sir, I'll answer this question. इसके अंदर सर आपका कोई लिमिट नहीं है, जो बेसिकली जो स्टाइपेंड कैलकुलेट करेगा ना पोर्टल आपका जिस महीने का, आप उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बेसिकली वो एक वॉलेट टाइप ऑफ वो रहेगा, जैसे आप पेटीएम में पैसा डालते हैं, पेटीएम में भी रहता है ना पैसा, सेम इज दैट। अगर आपका उस मंथ यूज नहीं हो पाया तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में यूज कर सकते हैं। Okay, but while operating this online apprenticeship gateway portal, some establishment had mentioned that there is limit of 50,000 for them. Bank told them. No sir, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, thank you. Yeah. हेलो। हाँ जी सर। मैम एक चीज जो प्लीज बताइए कि इस सारे प्रोसेस में कहीं भी किसी भी स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को यदि हमारे किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेज पर,
तो वो टाइम टू टाइम किससे कांटेक्ट कर सकता है? अदरवाइज फिर वो स्टेट ऑफिस को मेल करेगा, कहीं एनएसडीसी फोन लगाएगा। तो ऐसा कोई नोडल पर्सन है जिससे वो अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए कहीं भी उसको कांटेक्ट कर सके? अजय सर वुड लाइक टू आंसर। नहीं, पहले लेवल पे तो टिकटिंग का आप यूज करें जी। टिकटिंग हमारी ही एक नोडल अफसर के पास में जाती है। अगर उनको डायरेक्टली किसको इन्वॉल्व करना है, इंफॉर्मेशन देनी है उस टिकट के बारे में, तो हम इंटरनली उसको टैकल करते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल चीज है तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द टेक्निकल सपोर्ट। अदरवाइज डीटी तरफ से मैं हूँ, मुझे आप मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। ओटी का कुछ इश्यू है तो ओटी के लिए कौन है नॉकटेक आपको भेजी? सर भगत सर इसमें यही रिक्वेस्ट हाँ जी सर, यस अपडेट के लिए। भगत सर आप बहुत बिजी रहते हैं नीले सर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यदि हमारे पूरे स्टेट ऑफिस से मान लीजिए 52 डिस्ट्रिक्ट आईटीआईज हैं, यदि 20 आईटीआई से भी कहीं से कुछ मेल आया है तो सर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं सर। हम लोग इधर हम स्टेट ऑफिस से आपको मेल करते हैं तो सर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है सर। हाँ, लोड काफी ज्यादा है, आपको भी इसकी जानकारी है। एक नोडल ऑफिसर को होना चाहिए जो ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। जहां तक सर टिकटिंग की बात है, टिकटिंग में जैसा सर आपको शक्ति सर ने बताया कि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सर। हमने कई बार ट्राई किया है। ये फैक्ट है मैडम सर, बिल्कुल कि टिकटिंग से वो कुछ ना कुछ उसको ऐसा रिप्लाई कर देते हैं, हम कुछ उसको जवाब ही नहीं दे पाते हैं। इवन सर मेरे अभी बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो अपने डीजीटी में फिर डायरेक्टली जब मैंने अविनाश सर को टैग किया तो अविनाश सर के द्वारा फिर उसको एनएसडीसी भेजा गया, तब जाके रिजॉल्व हुए सर। अदरवाइज मैं डीजीटी में कितनी बार मेल करता हूँ, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता सर। हाँ, टिकटिंग को हम थोड़ा सा रिविजिट कर रहे हैं। टिकटिंग में प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको प्रोसेस लेवल की चीजें और टेक्निकल चीजें, अगर प्रोसेस लेवल की चीजें उनके ध्यान में नहीं आती तो कोई फंड को वापस भेज के वो क्लोज करा देते हैं, हमने देखा है। अभी हमने उनको डायरेक्शन दिया है कि अगर ये पॉलिसी लेवल की या अन्य इस तरह की कोई चीजें हो तो वो हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व करे या तो हमारे पास भेजे, तो उस पर अभी इस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा उसमें टिकटिंग। और सर टिकटिंग का एक तो क्या है कि वो 3 डेज का शेड्यूल है। यदि मान लीजिए उनकी तरफ से रिप्लाई आया और हमने उसका रिप्लाई नहीं किया तो क्लोज हो जाएगी। तो उसको रेजोल्यूशन जब तक वो सॉल्व ना हो जाए तब तक उसको एक्टिव होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। इसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है और कुछ चेंजेस उसमें अभी वो ठीक काम चल रहा है उसमें। जी सर, वो टिकट के लिए एक चीज मैं बोलूंगी उस पे सर, वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वो मांग रहे हैं ना डिटेल्स, वो मेंशन करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने बहुत बार ये देखा है कि वो यूजर को लिखते हैं कि ये टिकट्स पे ये सबमिट करो डिटेल्स, वो देते नहीं है, तो इस वजह से वो शायद क्लोज कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने सारे डिटेल दिए थे मैडम, सारे डिटेल। ये जो फेक कॉन्टेक्ट वाला इशू शक्ति सर ने आपको बताया, हमने सारे डिटेल दिए, फिर उन्होंने दोबारा हमसे ठीक है सर, इसका मतलब वो टेक्निकल टीम से लोग ठीक है, विल कोऑर्डिनेट विद देम। उन्होंने हमसे फिर से वही चीज पूछी कि उसका ईमेल बताइए, नाम बताइए, कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। हमने फिर से उसको मेल किया, तो लास्ट में उसका रिप्लाई आया कि अब आप कैंडिडेट से बोलिए कि वो लॉगिन अपनी लॉगिन से भेजे। तो जब स्टेट ऑफिस भेज रहा है तो फिर बच्चे से लॉगिन कराने का कुछ मुझे सही समझ नहीं आया। हाँ, नहीं इस तरह की कुछ एक्चुअली बच्चों को ठीक से टिकट रेस करना नहीं आता है सर। यस बिल्कुल यस। नहीं, बच्चों से टिकट रेस करवाने का एक ही फायदा है कि वो लूप में रहते हैं और कुछ उस पर अगर रिक्वायरमेंट है या फीडबैक आता है तो डायरेक्टली उनको समझ में आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे का रिलेटेड इशू हो तो बच्चा करे। सर एक्चुअली क्या होता है, देखिए बच्चा हमारा 10th पास है, आईटी पास हो गए, वो सारी चीजें अगर हमारे स्टेट में हिंदी में है तो फिर वो हिंदी में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ये ऐसा, मेरा वो प्रॉपर नहीं लिख पाता है सर। सही बात, ये इशू आता है सर। और हम लोग उसकी चीजों को सब समझ करके और सारे डॉक्यूमेंट के साथ हम टिकट जनरेट करते हैं सर, फिर भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता सर। नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे कि आपसे आने वाला सफिशिएंट डॉक्यूमेंट के साथ में कोई भी क्वेरी हो उसको कंसीडर किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। ओके सर, हम बात करेंगे उनके साथ। एटलीस्ट AAA के लॉगिन से जो भी आता है उसको जल्दी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सर। हाँ एक्चुअली सर मैं पीके अग्रवाल राजस्थान से, मेरा एक सजेशन है सर, जो इस तरह के इश्यूज आते हैं यदि उसकी पावर RGST को दी जाए तो शायद ये प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी।
Yeah, it will be helpful. नहीं, किस तरह की चीजें, देखो टेक्निकल चीजें तो RDSP AAA सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो हम ईमेल आपको कराते हैं, अजय सर को करवाते हैं और आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्व की पाती, तो यदि हम RDSP को करें सर तो वो भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस है कि वो बस डायरेक्टली हमारे पास भेज देते हैं। अगर कुछ प्रोसेस रिलेटेड चीजें हैं, पॉलिसी से रिलेटेड, तो उन्होंने गाइड करना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं और हमारे पास ही फाइनली वो आता है। एक तो हमें करना पड़ता है, हमारे टेक्निकल टीम को करना पड़ता है। तो कोई ऐसे आप एग्जांपल्स बताइए या सिचुएशंस बताइए जिसमें रियली आपको RDSD हेल्पफुल नजर आए, तो हम उनको साइकिल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये वाले टीवी टीम के। तो क्योंकि टेक्निकल जो चीज है वो तो टेक्निकल टीम ही कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टल में कोई इशू आता है तो वो तो वही कर पाएंगे। नहीं सर, रिजल्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज है जो RDSD कर सकती है ना। ओके, सो दैट्स नॉट बैड, ठीक है। हाँ, रिजल्ट रिलेटेड कुछ चीजें हैं, मार्क्स कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना है, इस तरह की चीजें डेफिनेटली वो कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स वगैरह अभी क्या है, एग्जाम के इनके पास ही होते हैं, या तो हमारे HP के पास में है, विप्रो के पास में है, या तो हमारे IBM के पास में है, ठीक है। जस्ट फैक्ट चेक करके वो आगे बढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हो। देखेंगे उनको किस तरह से इसमें इन्वॉल्व करने से फायदा होगा, विल थिंक ऑन इट। सर, ये फेक कॉन्ट्रैक्ट जो जनरेट किए जाते हैं डेजिग्नेटेड बच्चों के ऑप्शनल ट्रेड्स में, उसके बारे में क्या सोल्यूशन मिल सकता है सर? बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वो कौन सा ट्रेड का, उसको मालूम ही नहीं है। बच्चा, उसको पता ही नहीं होता है कि वो उसका आधार लिंक, उसका ये नंबर लेके उसके आगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवा के आगे की सारी, जबकि बच्चा तो घर पे ही बैठा रहता है। और जब उसको चांस आता है अप्रेंटिसशिप का, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट, तो ऑलरेडी यू आर इन द कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर ऐसा आता है, और बच्चा बोलता है ये तो मेरे को मालूम ही नहीं है। तो इन केस में क्या कर सकते हैं सर? देखिए, बच्चे को मालूम नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, किसी ना किसी स्टेज पे, इवेंट पे उसने अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ में शेयर किए हैं। विदाउट शेयर किए दूसरा उसको मिसयूज नहीं कर सकता, नंबर 1, ठीक है। जैसे आपके पास में इसकी इंफॉर्मेशन आती है, आप ढूंढिए, आप अप्रूविंग अथॉरिटी हैं, अपने लेवल पे थोड़ा सा उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फैक्ट्स निकालिए, ये फैक्ट्स के साथ में हमारे पास भेजिए। हम 2-4 केसेस ऐसे ही आगे बढ़ाई है, हमने उनको ब्लॉक भी किया है, शोकॉज भी इशू किया है। तो फैक्ट के साथ आता है तो डेफिनेटली इमीडिएटली हमारी तरफ से भी एक्शन हो जाएगी, लेकिन कुछ ग्राउंड वर्क आपको करना पड़ेगा, फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे क्या है करके, नहीं तो वो काम हमें करना पड़ता। आप केस बना के दीजिए हमारे पास में, हम उस पर एक्शन लेंगे। फेक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी, सिम भी बदल दिए गए हैं, जो पहले यूज किया है वो उनके पास नहीं है अभी, और ईमेल आईडी ऐसा जनरेट किया है कि वो बच्चे को तो मालूम ही नहीं। सर, जब हम आधार लिंक से उसका प्रोसेस चेक करने जाते हैं तो ऑलरेडी उसका ईमेल चेंज हो गया रहता है, और उसके चेंज ईमेल से उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अप्रूव हो जाता है। उसको पता भी नहीं होता है कि उसका ईमेल चेंज हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया है। इसलिए जो प्रोफाइल बनानी है बच्चे को बनानी है। आप बोलते हैं बच्चा हमारा इतना वो नहीं है, समझदार नहीं है कि अपनी प्रोफाइल ठीक से बना पाए, इसके वजह से ये लोग उसका गैर फायदा उठा रहे हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और अपने से प्रोफाइल वो चेंज बना देते हैं उसकी, ठीक है। बच्चे को मालूम नहीं, लेकिन बच्चे ने डॉक्यूमेंट दिए हैं, ये भी हमने देखा है। और रही बात ईमेल आईडीज की, जो डिफरेंट ईमेल आईडीज हैं, ये अभी वो टीके या वो इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से अपने आईडीज क्रिएट कर देता है, जो लगता नहीं कि बच्चे ने क्रिएट किया हो, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे की देखा है। तो आप ये बच्चा टेम्पररी जॉब कर रहा था तब उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है ऐसा। राइट, ये बहुत सारे सिचुएशन इस तरह के आए हैं, ठीक है। वो बच्चे को बताते हैं तो अभी वहाँ पे जॉब के हिसाब से देखेंगे तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड वो तो ले ही लेते हैं। हाँ, ले ही लेते हैं, कोई भी टेम्पररी जॉब क्यों ना हो, बैंक डिटेल्स के लिए वो लोग वो ले लेते हैं। टेम्पररी जॉब पे हो, देखिए आधार एक्ट के अनुसार आपको आधार अपना शेयर नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो समझदारी है, ये जो इंफॉर्मेशन डाउन द लाइन परकुलेट, ये तो मैनिपुलेट किया है, वो समझ आता है। हाँ, तो वही बोलता है, ऐसे केसेस की अगर आपके पास में फैक्ट हो, डेटा हो, डेफिनेटली आप फॉरवर्ड करें हमें, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो अभी 2-3 महीने से ट्राई कर रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की,
लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो अभी उसको अप्रेंटिसशिप डेजिग्नेटेड ट्रेड से नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, ये इंफॉर्मेशन आप पोर्टल से निकालिए। हम तो बच्चे को ये गाइड करते हैं कि सीधा पुलिस स्टेशन जाए और अपने डेटा का मिसयूज करने का जो है वो साइबर सेल में अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दे। ये पहला एक्शन होगा, ये पहला एक्शन होगा, ठीक है। ये पहला एक्शन करने को बोलिए, गाइड कीजिए बच्चे को, और जब बच्चा करेगा सेकंड लेवल पे हमारे पास आप भेज दीजिए सारी चीजें। सर और एक रिक्वेस्ट थी। हेलो सर, ओटी में जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है उसको अभी नॉन एनए फील्ड्स में डेसिग्नेटेड ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? अभी जिसका कंप्लीट हो चुका है, अभी जिसका नहीं हुआ है उसका तो टर्मिनेट करके वो सब करेंगे, लेकिन जिसका नहीं कंप्लीट ही हो चुका है उसका क्या कर सकते हैं? एक नैप्स और एक नॉन नैप्स अलाउड है सिस्टम में, जैसे भी कॉम्बिनेशन। सर नहीं अलाउ कर रहा है वो नॉन नैप्स में, वो डीटी के लिए हमने ट्राई किया, नहीं आया। मैं फिर से आपको टिकट प्लेस करके ये आपको मेल कर देती हूँ, आप भेज दीजिए उसके डिटेल्स, सब चेक करते हैं। हेलो सर, सर एक ओवन क्वेश्चन इज देयर, TPA now TPA using their own emails, is it right or wrong? रॉन्ग है, बच्चे का ईमेल होना चाहिए, ठीक है, बच्चे की ईमेल होना चाहिए। TPA ओन नहीं करता है, बेसिकली वो अपने फॉर्मेट में ईमेल को बना देता है, ऐसे कहना उचित होगा, ठीक है ना। अपने फॉर्मेट में जैसे कोई XYZ है तो x.y.z.16 करके कुछ बना लेगा, ताकि वो सिस्टम को लगे, प्रोवाइडर को लगे कि ये वैलिड ईमेल है। लेकिन हमने ऐसे इंस्टेंसेस हमारे पास में आए हैं और हमने इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है, हमने ब्लॉक कर दिया। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी हेल्प की बहुत जरूरत है हमें। इसमें जो भी फैक्ट आपको मिलता है इमीडिएटली अगर हमारे पास लाते हैं तो ऐसी केसेस कम करने में या बंद करने में हमें काफी सहयोग। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, अभी हम जनरल डिस्कशन के ऊपर जा रहे हैं, शायद ये हमारा सब्जेक्ट आज का नहीं था। नहीं सर, टीपीए सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि टीपीए ने सारे एस्टेब्लिशमेंट के डिटेल्स भी चेंज कर दिया। ओटीपी अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट से भी कांटेक्ट करना है, अब मेरे पास सर 700 से 800 एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हैं, तो सारे टीपीए ने वहां पे चेंज कर दिया, तो टीपीए कॉल उठाते नहीं है ना, हम एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर पाते हैं सर। टीपीए ने क्या कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट कांटेक्ट एस्टेब्लिशमेंट में ईमेल आईडी भी खुद का डाल लिया है, एक पर्सन भी खुद का डाल लिया है, और ओटीपी भी उसी के पास जाता है। अब हमें किसी भी रिगार्ड उससे बात करना है, अगर एस्टेब्लिशमेंट में शेयर ही नहीं करना चाहिए ना अपने क्रेडेंशियल्स टीपी के साथ में। टीपी को अलग लॉगिन है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि टीपीए अपना अलग लॉगिन करे, ऐसा पॉसिबल है? टीपी का अलग लॉगिन है इस सिस्टम में, टीपी का अलग लॉगिन है, और उसके लॉगिन के थ्रू जो भी सपोर्ट करना है एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस समय क्या करते हैं, अपना लॉगिन ही शेयर कर देते हैं। जी यही हो रहा है as it is same as establishment वो कर सकता है। क्या ऐसे हो सकता है क्या कि स्टूडेंट का जो प्रोफाइल में आधार नंबर डलवाते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो उसको उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में उसी पे ओटीपी जाए, और जब तक वो ओटीपी नहीं डालेगा तब तक वेरीफाई नहीं होगा। ये एक ही ऑप्शन है, जब तक आधार वेरीफाई नहीं होता है तब तक एनपीएस क्लेम नहीं कर सकता है। कोई भी टीपीए हो या कोई भी पर्सन हो, तो अगर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन खुद कर रहा है तो भी जब तक आधार कार्ड डालेगा, जब तक उसको ओटीपी नहीं आएगा तब तक वो वेरीफाई नहीं होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अभी ये प्रोविजन अभी ये प्रोविजन प्रोफाइल में है ऑलरेडी। हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं। एक तो डिफॉल्ट ऑप्शन जो पहले से चल रहा है, दूसरा आधार का है, तीसरा वर्चुअल आईडी का है। तो थोड़ा गाइड कीजिए बच्चों को। मेरा अगर किसी पर्सन के पास जाता है आधार कार्ड का, जैसे मैम ने बताया था जॉब के लिए उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लिया था, तो अगर मैं नंबर डाल दूं तो वो अपने आप वेरीफाई हो जाता है। तो अगर ये क्लोज करना है, ये पॉइंट अगर हम लोगों को बंद करना है, तो हम लोगों को कंपल्सरी वहां पे ओटीपी ऑप्शन ही यूज करना है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है अपने पोर्टल पे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा सर। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि कैंडिडेट के पेपर्स कहीं से भी किसी भी पर्सन के पास चला जा रहा है, जेरॉक्स कॉपी या फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर किसी को ज्वाइनिंग करना है तो भी वो पर्सन जेरॉक्स लेता है, उसका नैप्स में या अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करता है, उसका ईमेल एड्रेस भी खुद ही बनाता है। हम लोगों को कभी कभी उसका ईमेल एड्रेस से पता चलता है कि ये पर्सन का किसने बनाया है दूसरे स्टेट पे या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ये भी हम लोग समझ जाते हैं। उसका पैटर्न जो रहता है ईमेल बनाने का पैटर्न से समझ में आ जाता है ये थर्ड पार्टी वाला है, ये वो थर्ड पार्टी वाला जो बनाया है। फिर
हम लोग बच्चों को पूछते आ रहे तूने कहीं पेपर्स दिए थे, ऐसे ऐसे पर्सन को दिए थे, हाँ हमने ऐसा ऐसा कोई था वहाँ पे दिया है, हमें नहीं करना है वो बंद करना है, ऐसा सारा प्रॉब्लम था। तो अगर आधार कार्ड जो लिंक करवाना है या वेरीफाई करना है अपने पोर्टल में कैंडिडेट के लॉगिन में, अगर वही स्टॉप कर देते हैं, वो ओटीपी वेरीफाई जब तक नहीं होगा तब तक आधार लिंक कनेक्ट नहीं होगा, आधार वेरीफाई नहीं होगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट नहीं होगा। स्टूडेंट को भी पता चलेगा कोई तो मेरे आधार कार्ड का नंबर यूज कर रहा है, तो वो खुद ही अवेयर हो जाएगा कि ये अगर किसी कंपनी में ज्वाइन हो रहा है या किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहा है टीपीए के पास, तो उन्हीं को वो ओटीपी नंबर देगा। नहीं, ये प्रोफाइल में ऑलरेडी वन ऑफ द ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला 3 ऑप्शन है, आप चेक करने को कंपलसरी, ये का अभी कंपलसरी नहीं है। हाँ, 3 में से एक ऑप्शन नहीं हो रहा है तो वो यूज कर सकते हैं। वेल टेकन, या हम देखेंगे कि किसको रखना है और किसको कंपलसरी उसमें से, हो सकता है आधार वाला पार्ट हम रखें। हेलो सर, ठीक, one question is there sir, how to transfer money on apprenticeship gateway? Sir, basically, I'll answer. सर इसमें क्या होगा, जब आप अप्रेंटिसशिप गेटवे का वो सिलेक्ट करेंगे ना पेमेंट मोड, तो वो ऑटोमेटिकली एक पेज पे आपको लेके जाएगा, उसी पेरोल पेज पे व्यू बैंक डिटेल्स करके आपको देखना होगा, वहाँ पे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसमें अकाउंट नंबर लिखा होगा, IFSC कोड लिखा होगा और बैंक का नेम लिखा होगा। ठीक है, इस अकाउंट नंबर में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, जैसे हम NEFT और RTGS करते हैं एक बेनिफिशियरी को ऐड करके, सर वैसे ही करना है इसमें। IMPS अलाउड नहीं है, बाकी NEFT और RTGS आप कर सकते हैं। उसको बेनिफिशियरी ऐड करिए एज अ वर्चुअल अकाउंट पे, ठीक है, वो ऑप्शन आपको दिखेगा और वहां पे वो पैसा जो स्टाइपेंड कैलकुलेट किया है पोर्टल ने, वही सेम पैसा आपको ट्रांसफर करना है वैन अकाउंट में, जिसको बोलते हैं वर्चुअल अकाउंट नंबर। और सर वहां से पैसा जो है स्टाइपेंड जो है आई मीन अप्रेंटिसेस को पैसा स्टाइपेंड चला जाएगा विदिन 24 आवर्स। ओके, थैंक यू। बेसिकली वर्चुअल अकाउंट, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ऐसा कोई सेशन करने वाले हैं? अलग से नहीं, इसलिए अपने अथॉरिटीज के लिए किया है, आगे डाउन द लाइन आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वैसे कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं शायद इसमें, तो ये सेकंड स्टेज में आपको देना है। ठीक है, देवास से बात करें सर? देवास से। हाँ बताइए। हमारे ट्रेड है, ऑप्शनल ट्रेड है ऑटोमेटिव CNC मशीन टेक्नीशियन। एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस रख लिए हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो सर इसमें सर कॉन्ट्रैक्ट सर इशू मतलब सर इसमें क्या कर सकते हैं सर? सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने 12वीं की मार्कशीट बस लगाई है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया सर उसमें, और मिनिमम क्वालिफिकेशन में 12 प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बोल रहा है सर उसमें। हाँ, तो ये आपके हाथ में है, आपको मालूम है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे उसको मत एंटरटेन कीजिए। ठीक, ओके, ठीक है सर। जी सर, थैंक यू। क्योंकि अभी ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं है सारी हॉरिजॉन्टल मैपिंग हमारे पास में, हम डिपेंड करते हैं अपनी अथॉरिटी के पास में, हमारे पास में सारे डिटेल्स है कोर्स के, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसीजन दीजिए। सर बोल रहा हूँ कि सर एक मोबाइल नंबर से सर 300 कॉन्ट्रैक्ट नंबर सर कैसे जनरेट हो सकते हैं पोर्टल में? सर ऐसा हो रहा है सर? नहीं, गलत है, हमने नोट किया है उसको, हमने डायरेक्शन भी दी है हमारे NSDC को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जैसे सर एक एग्जांपल बोल रहे थे, ओडिशा का एक कैंडी है, वो आया था कंप्लेन करने के लिए कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जनरेट हो गया है, लेकिन मैं जिस जगह करना चाहता हूँ उस जगह जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, मतलब एक फेक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और महाराष्ट्र का कोई एक फेक एस्टेब्लिशमेंट में उसका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, लेकिन वो बोले मैं कभी महाराष्ट्र गया नहीं, लेकिन मैं अभी ओडिशा में करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो रहा है। और जो ईमेल आईडी मैंने चेक किया, ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है नॉट बिलोंग्स टू हर। हाँ, तो इस केस में हमने जैसे बोला बच्चों को कंप्लेंट करने को बोलिए, या आपके तरफ से सारा डेटा इकट्ठा करके हमारे पास भेजिए, हम इसको करवा देंगे, हम इसको ब्लॉक करवा देंगे या आगे की इंक्वायरी करेंगे ये चीजें, या डायरेक्टली बोलिए बच्चे को पुलिस कंप्लेंट करें, सिंपल जी। जो अभी थी कि वो कैंडिडेट अभी इमीडिएट अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अप्रेंटिसशिप करना चाहता है एक एस्टेब्लिशमेंट में, अभी उसका क्या कर सकते हैं सर अभी स्टेज में? हाँ, उसका पुराना रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, लेकिन वो निकालने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कुछ ऐसे जानकारी होनी चाहिए जिसके बेस पे हम उस पर डिसीजन ले सके, वो जानकारी हमारे साथ आप साझा करें, ठीक है? यस सर, हम उसको करवा देंगे। हेलो, ओके।
हाँ, रिगार्डिंग क्लेम, हेलो। हाँ जी, हेलो, रिगार्डिंग क्लेम पूछना चाहता हूँ सर कि अगर ये अभी पोर्टल हम एक्टिवेट कर रहे हैं अप्रैल 22 से अभी तक का, लेकिन ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट तो फुल पेमेंट कर चुकी है, तो ये डीबीटी अभी हम अगर एस्टेब्लिशमेंट करती है अप्रैल 22 से ऑनवर्ड्स, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? बच्चों के अकाउंट में जाएगा ना? डीपीटी अगर शुरू होगा हमारे 1 अप्रैल से, जो कि फुल डीबीटी की बात है, तो वो डायरेक्टली जो आपका 1500 या मिनिमम जो भी है वो जाएगा बच्चे के खाते में। ठीक है, आपने उसको पहले पे किया होगा, जैसे ही उसका हमें हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आता है, बच्चे को पेमेंट किया जाएगा। दैट इज द बीटीपी कंसेप्ट दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। रियम्बर्समेंट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, डीबीटी शुरू हो जाएगा। फिर मैं बीटीआर जलगांव से बात कर रहा हूँ। हाँ, और इसी बॉयलर अटेंडेंट कैंडिडेट है हमारे, जो कोविड के टाइम में कंपनी में थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं जनरेट हो रहा है कंपनी की तरफ से। बहुत लोग को पता नहीं है, बहुत लोग को पता नहीं कि बॉयलर अटेंडेंट अभी ओनली फ्रेशर के लिए है। ठीक है ना, पहले वो इसके लिए था, फिटर के लिए भी एलिजिबल था, लेकिन वो चेंज हुआ अभी। तो ये था। हाँ, ये जो ट्रेड है ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए है, 10 पास होना चाहिए, 2 साल का ट्रेड है। ठीक है ना सर, फ्रेशर के लिए ही है, लेकिन वो फ्रेशर जो है ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन अभी जब वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देने को जाती है ना, तो उनको बीटीपी किया है। तो ऑलरेडी उन लोगों ने आईटीआई में बीटीपी किया हुआ है पहले से हमारे, लेकिन हमारे आईटीआई को बीटीपी का ये नहीं रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी तक। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? नहीं, फ्रेशर के लिए तो बीटीपी चाहिए, डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए अभी बीटीपी चालू है। ओनली ऑप्शनल ट्रेड का हमने बीटीपी का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये डेजिग्नेटेड ट्रेड है, जैसे ही 10th पास होगा डेफिनेटली तो सिस्टम बोलेगा कि बीटीपी और ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। हाँ, तो लेकिन जो भी हमने आपको दिया था इनपुट या जो भी एसओपी है, उस एसओपी को फॉलो कर लीजिए, बीटीपी टीसी क्रिएट कर लीजिए, कोर्स ऐड कर लीजिए, आपका खुद का आईटीआई को बनाइए बीटीपी, अगर आपके पास फैसिलिटी है ऑब्वियसली, तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा, एसोसिएशन करना पड़ेगा, तब आप आगे इसको जा सकते हैं। लेकिन दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेशर कैंडिडेट इस ट्रेड का। फ्रेशर कैंडिडेट ही है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर जनरेट नहीं होगा, उसके सिवा नहीं जनरेट हो सकता है क्या? नहीं, बीटीपी टीसी के सिवा नहीं होगा। आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रिएट करना होगा आपका ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, अप्रूव कराना होगा कंसर्न अथॉरिटी से, एसोसिएशन करना होगा बीटीपी और एस्टैब्लिशमेंट का। तब जब आप कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं तो वहां पे बीटीपी सिलेक्ट करना होता है, टीसी अपने आप आ जाएगा वहां पे। लेकिन वो लड़के ने पहले हमारे ये रिबेट की बात है ना, रिबेट का कंसेप्ट आपको पता है सर? वो लड़के ने ही ना ट्रेनिंग कर लिया है ना आईटीआई में। अभी बॉयलर अटेंडेंट में रिबेट का कंसेप्ट नहीं है, अभी निकल गया वो। चाहे उसने आईटीआई भी कर लिया होगा तो वो यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा। आप सिलेबस देख लीजिए, कभी भी अगर आप डाउट है, कभी भी इस तरह की वेबसाइट पे जाइए, इस तरह के वेबसाइट से आप सिलेबस देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। वो नहीं है सर, उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग जो है 6 महीने का, पहला जो था 3 महीने का, वो आईटीआई में कर चुका है वो लड़का, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हुआ था पोर्टल पे उस टाइम पे। नहीं, आईटीआई में क्या किया, एज अ पार्ट ऑफ आईटीआई और एज अ पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। आईटीआई बीटीपी मैकेट्रॉनिक्स ट्रेड है जिसका नाम चेंज हो गया है, अभी नाम चेंज जो है वो पोर्टल में अपडेटेड नहीं है, उसकी वजह से उन लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं इशू कर पा रहे हम लोग। हाँ, ये पॉइंट हमने नोट किया है। आगे हमारी जो सीएससी की मीटिंग होगी, सीएससी की मीटिंग में एक पॉइंट है, हमने रखा है इसको, उसमें अप्रूव हो जाएगा, तब आपको दिखेगा। सर, हाँ जी सर, पेरोल फ्रीज होने की वजह से बैकडेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही हमने बोला कि अभी तुरंत जो 1 महीने के अंदर में सबमिट कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बिना अप्रूवल के फ्रीज नहीं करने देंगे। ये प्रोसेस हमने तैयार कर ली है। इसके वजह से जो तुरंत आपका बच्चा 29 को ज्वाइन किया और उसको 2 दिन का पे देना है तो फ्रीज कर देते हैं, और अप्रूव ही नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है इससे सॉल्व होगा। हम जब तक कॉन्ट्रैक्ट उसको फ्रीज नहीं करने दे रहे हैं, तो ये एबिलिटी आ जाएगी, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन सर मेरे पास अभी 30 अराउंड ऐसे बच्चे जो जिन्होंने 2019 और 2022 में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया, लेकिन उनको बैकडेटेड करना है, मुझे कंपनी का लेटर आया है, लेकिन वो उनको एरर आ रही है कि पेरोल हैज ऑलरेडी बीन फ्रीज। पेमेंट हुआ है कि नहीं? ऑनलाइन पेमेंट हुआ है? पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ पेरोल फ्रीज किया था उन्होंने। हाँ, तो फ्रीज किया, पेमेंट नहीं हुआ तो अनफ्रीजिंग की फैसिलिटी हमने AAA, SA, RDSD के पास दी है। उनको आप अगर अप्रोच करते हैं मंथ, ईयर और एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे वो पेरोल अनफ्रीज किया जा सकता है। ओके सर। ओके, टेक अ लास्ट क्वेश्चन एंड देन क्लोज, प्लीज गो अहेड। यस सर, हमारी एक कंपनी है हमारे यहाँ पे, उन्होंने डीबीटी के रजिस्ट्रेशन किया था, वो क्रेडेंशियल अभी तक आया नहीं है। सिर्फ सितंबर अक्टूबर से वो कंटिन्यू फॉलो ले रहे हैं, लेकिन उनको क्रेडेंशियल नहीं आया हुआ है। किसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा। डीबीटी सर, डीबीटी के लिए कह रहे हैं, हु इज लुकिंग? डीबीटी के लिए। हाँ, डीबीटी का अभी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। हम आप भेज दिए, हम उस ऑफिसर को ये ट्रांसफर करेंगे ये पर्टिकुलर इशू। वी आर नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द डीपीटी, सो मे नॉट बी एबल टू क्लैरिफाई दैट। अभी डीबीटी का गए, अभी मैं ले सकता हूँ सर। ऑफलाइन जो है, हाँ उसकी बात करें ना, आप ऑफलाइन डिटेल्स भेजते हैं, अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी चीज, और फिर उसका रजिस्टर किया है, लेकिन क्रेडेंशियल आया नहीं है। उन्होंने सबसे मेल भी किया, हमने भी मेल किया हुआ। सर आपने किसको मेल किया है? हमने अविनाश सर को मेल किया है और अविनाश सर को मेल किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अजय सर, एक बार अविनाश सर अगर वो अभिषेक को कर देंगे तो आई थिंक अभी डायरेक्ट कर देंगे, अभिषेक को कर देंगे। करना है तो आप अभिषेक को कर दीजिए, डीबीटी रिलेटेड सारी चीजें। अगर उनका कांटेक्ट मालूम नहीं है तो अनौकित आई जस्ट राइट ईमेल, हाँ ईमेल पे बस ईमेल लिख दीजिए, कांटेक्ट नंबर नहीं। आई जस्ट राइट, ठीक है। हेलो, यस सर। मैडम, जो अभी डीबीटी सैम्पलिंग प्रोसेस पे जो चल रही थी, अभी हम ये प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं, तो रनिंग में कंपनीज, those companies we have already selected as a sample for DBT, can they continue in running one or not? Yes sir, ऑफलाइन तो चली जाए, ऑफलाइन के तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब फुल अभी उनका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ बच्चों का ऑफलाइन करा है और कुछ बच्चों का क्लेम है, तो सर वो भी पॉसिबल है, लेकिन सिस्टम में वो चीज जो डीबीटी वाले बच्चे होंगे वो ग्रेड आउट हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, okay, so we'll just close this call. Okay, so thanks everyone for your time in so I think we are able to clear your queries. Do let us know, you can just mail Ajay sir or me in case of any queries related to like DT claims online process. Okay, thank you. Thanks everyone. I will just thanks, bye. Okay, thank you. Thank you.